हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और लास्ट वीडियो में हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का चैप्टर 4 सेक्शन 19 तक कवर किया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 4 सेक्शन 20 से 29 तक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 20 डील करता है मॉनेटरी रिलीफ से। सेक्शन 2 के में भी इसकी डेफिनेशन है। मॉनेटरी रिलीफ मतलब फाइनेंशियल रिलीफ। Subsection 1. While disposing of an application under subsection 1 of section 12, the magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person and any child of the aggrieved person as a result of the domestic violence, and such relief may include but not limited to the loss of earning, the medical expenses, the loss caused due to destruction, damage or removal of any property from the control of the aggrieved person, and the maintenance for the aggrieved person as well as children, if any, including an order under or in addition to an order of maintenance under section 125 CRPC or any other law for the time being in force. Section 12 subsection 1 की एप्लीकेशन डिस्पोज करते समय मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को कि वो एग्रीव्ड पर्सन को मॉनेटरी रिलीफ दे जो भी इंजरी या फिर जो भी उसे लॉस हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट से। और ऐसे रिलीफ इंक्लूड करते हैं लॉस ऑफ अर्निंग को, मेडिकल एक्सपेंसेस, और अगर कोई लॉस हुआ है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी जो कि एग्रीव्ड पर्सन के कंट्रोल में थी, उसका डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रिमूवल। और CRPC के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस अलाउ करवाना एग्रीव्ड पर्सन का और उसके बच्चों का भी, अगर उसके कोई बच्चे हैं तो। Subsection 2. The monetary relief granted under this section shall be adequate, fair and reasonable and consistent with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed. इस सेक्शन के अंतर्गत मॉनेटरी रिलीफ जो होगा वो एडिक्वेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। Subsection 3. The magistrate shall have the power to order an appropriate lump sum payment or monthly payments of maintenance as the nature and circumstances of the case may require. मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो रिस्पोंडेंट को कहें कि या तो आप एक बार में पूरा पेमेंट कर दीजिए मेंटेनेंस का या फिर मंथली करिए। Subsection 4. The magistrate shall send a copy of the order for monetary relief made under subsection 1 to the parties to the application and to the in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the respondent resides. मजिस्ट्रेट एक मॉनेटरी रिलीफ के जो ऑर्डर है उसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को भेजेंगे जिसके जुरिस्डिक्शन में रिस्पोंडेंट रहता है। Subsection 5. The respondent shall pay the monetary relief granted to the aggrieved person within the period specified in the order under subsection 1. जो रिस्पोंडेंट होगा वो मॉनेटरी रिलीफ पे करेगा एग्रीव्ड पर्सन को विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। Subsection 6. Upon the failure on the part of the respondent to make payment in terms of the order under subsection 1, the magistrate may direct the employer or debtor of the respondent to directly pay to the aggrieved person or to deposit with the court a portion of the wages or salaries or debt due to or accrued to the credit of the respondent, which amount may be adjusted towards the monetary relief payable by the respondent. अगर रिस्पोंडेंट जो है वो फेल हो जाता है अपने पार्ट पे और वो पेमेंट नहीं करता मेंटेनेंस की एग्रीव्ड पर्सन को, तो जो कोर्ट है वो ऐसा डायरेक्ट कर सकता है उसके एम्प्लॉयर और डेटर को कि भाई आप कोर्ट में आके उसकी सैलरी या वेजेस का एक पोर्शन कोर्ट में जमा करा दीजिए और फिर वो उसको, और जो कोर्ट है वो जो उसने जमा किया है उसके एम्प्लॉयर और डेटर ने, उसको वो एज ए मॉनेटरी रिलीफ एडजस्ट कर देंगे। सेक्शन 21 डील करता है कस्टडी ऑर्डर से और हमने सेक्शन 2D में भी इसे पढ़ा है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर और फॉर एनी अदर रिलीफ अंडर दिस एक्ट ग्रांट टेम्पररी कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन
to the aggrieved person or the person making an application on her behalf and specify, if necessary, the arrangements for visit of such child or children by the respondent. सेक्शन 21 के अंदर मजिस्ट्रेट जो हैं वो हेयरिंग की किसी भी स्टेज पर टेम्पररी कस्टडी का ऑर्डर दे सकते हैं किसी चाइल्ड की एग्रीव्ड पर्सन को या फिर उस पर्सन को जिसने एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में एप्लीकेशन लगाई थी। अगर ज़रूरी हो तो वो अरेंजमेंट भी कर सकते हैं कि रिस्पोंडेंट उस बच्चे को विज़िट कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द मजिस्ट्रेट is of the opinion that any visit of the respondent may be harmful to the interest of the child or children, the magistrate shall refuse to allow such visit. अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि रिस्पोंडेंट अगर बच्चे को मिलेगा तो उसके लिए नुकसान है, तो वो ऐसे विज़िट को मना भी कर सकते हैं कि नहीं, आप विज़िट मत करिए। सेक्शन 22 कंपनसेशन ऑर्डर सेक्शन 2C में भी डिफाइन किया हुआ है। इन एडिशन टू द अदर रिलीफ्स एज मे बी ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, द मजिस्ट्रेट में on an application being made by the aggrieved person pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for the injuries including mental torture and emotional distress caused by the act of domestic violence committed by the respondent. सेक्शन 22 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो हैं वो कंपनसेशन ऑर्डर भी दे सकते हैं कि अगर रिस्पोंडेंट की साइड से डोमेस्टिक वायलेंस कमिट करते समय एग्रीव्ड पर्सन को कोई इंजरी आई है, मेंटल टॉर्चर हुआ है या इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है तो। सेक्शन 23 डील करता है पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो अंतरिम ऑर्डर दे दे या फिर एक पक्षीय ऑर्डर दे दे। Subsection 1. In any proceeding before him under this act, the magistrate may pass such interim order as he deems just and proper. अगर उसको लगता है, अगर उसको रीजनेबल लगता है तो वो सेक्शन 23 के अंदर interim order पास कर सकता है। Subsection 2. If the magistrate is satisfied that an application prima facie discloses that the respondent is committing or has committed an act of domestic violence, or that there is a likelihood that the respondent may commit an act of domestic violence, he may grant an ex parte order on the basis of the affidavit in such form as may be prescribed of the aggrieved person under section 18, 19, 20, 21 or as the case may be section 22 against the respondent. अगर प्राइमा फेसी ये डिस्क्लोज हो जाता है कि रिस्पोंडेंट ने कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया है या कर रहा है या करने वाला है तो वो एक एक्स पार्टे ऑर्डर उसके अगेंस्ट निकाल सकते हैं। सेक्शन 24 डील करता है कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। The magistrate shall, in all cases where he has passed any order under this act, order that a copy of such order shall be given free of cost to the parties to the application, to the police officer in charge of the police station in the jurisdiction of which the magistrate has been approached, and any service provider located within the local limits of the jurisdiction of the court, and if any service provider has registered a domestic incident report to that service provider. मजिस्ट्रेट जो होंगे वो ऑर्डर देंगे सेक्शन 24 के अंतर्गत इस एक्ट में कि जो उनकी ऑर्डर की कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए एप्लीकेशन की जो पार्टीज़ हैं उनको, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उसको जिसने डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट प्रोवाइड कराई थी, रजिस्टर कराई थी। सेक्शन 25 डील करता है ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर से, ऑर्डर का ड्यूरेशन और ऑल्टरेशन। सबसेक्शन 1. A protection order made under section 18 shall be in force till the aggrieved person applies for discharge. सेक्शन 18 के अंतर्गत पास हुआ जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि एग्रीव्ड पर्सन डिस्चार्ज के लिए अप्लाई ना करे। सबसेक्शन 2. If the magistrate on receipt of an application from the aggrieved person or the respondent is satisfied that there is a change in the circumstances requiring alteration, modification or revocation of any order made under this act, he may, for reasons to be recorded in writing, pass such order as he may deem appropriate. अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है
एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट की एप्लीकेशन पे कि अगर उस ऑर्डर में कुछ ऑल्टर किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, तो जो सर्कमस्टांसेस है उसमें चेंज आ सकता है। तो मजिस्ट्रेट को अगर सही लगता है, प्रॉपर रीजनेबल लगता है कोई भी रीज़न, तो वो रीज़न रिकॉर्ड करके वो ऐसा ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। सेक्शन 26 रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग और अदर सूट में रिलीफ। सबसेक्शन 1 Any relief available under section 18, 19, 20, 21 and 22 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, family court or a criminal court affecting the aggrieved person and the respondent, whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act. सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 के अंतर्गत अवेलेबल कोई रिलीफ किसी सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष किसी एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट को इफेक्ट करने वाली किसी लीगल प्रोसीडिंग में भी, चाहे ऐसी प्रोसीडिंग इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले या बाद में इनिशिएट की गई हो, मांगा जा सकेगा। Subsection 2 Any relief referred to in subsection 1 may be sought for in addition to and along with any other relief that the aggrieved person may seek in such suit or legal proceeding before the civil or criminal court. Subsection 1 में कोई रिलीफ किसी अदर रिलीफ के अतिरिक्त और उसके साथ साथ जिसकी एग्रीव्ड पर्सन किसी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष जिसको एग्रीव्ड पर्सन रेफर करे, ऐसे सूट या लीगल प्रोसीडिंग में मांगा जा सकेगा। Subsection 3 In case any relief has been obtained by the aggrieved person in any proceeding other than a proceeding under this act, she shall be bound to inform the magistrate of the grant of such relief. यदि इस एक्ट के अंतर्गत किसी प्रोसीडिंग से अलग कोई प्रोसीडिंग में एग्रीव्ड पर्सन द्वारा कोई रिलीफ जो है वो ऑब्टेन कर लिया है, तो वो ऐसे रिलीफ को ग्रांट करने वाले मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए एग्रीव्ड पर्सन बाउंड होगा। सेक्शन 27 में आ जाइए, जो कि डील करता है जुरिस्डिक्शन से। सबसेक्शन 1 द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच। इस एक्ट के अंतर्गत पहली बात तो जो केसेस हैं वो ट्राई किए जाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंडर या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंदर, अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो। क्लॉज ए द पर्सन एग्रीव्ड परमानेंटली और temporarily resides or carries on business or is employed or, जहाँ की एग्रीव्ड पर्सन जो है वो परमानेंटली या टेम्पररी रहता है या फिर कोई बिजनेस करता है या फिर एम्प्लॉयड है जहाँ पर। क्लॉज बी द रिस्पोंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और इज एम्प्लॉयड, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता है या फिर बिजनेस चलाता है या एम्प्लॉयड है, वहाँ पर भी जुरिस्डिक्शन होगा ऐसे केस का। क्लॉज सी द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अराइजन, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वहाँ पर भी केस ट्रायल किया जा सकता है। शैल बी द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ग्रांट द प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड अदर ऑर्डर्स अंडर दिस एक्ट टू ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही कॉम्पिटेंट कोर्ट होंगी इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑर्डर या फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर कोई और ऑर्डर देने के लिए। सबसेक्शन 2 डील करता है एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्फोर्सिएबल थ्रू आउट इंडिया। इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करेगा वो थ्रू आउट इंडिया इन्फोर्सिएबल होगा। सेक्शन 28 डील करता है प्रोसीजर से। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22 and 23 and offences under section 31 shall be governed by the provisions of the CRPC. इस एक्ट के जो अदर प्रोविजंस हैं उनके सिवाय सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 और सेक्शन 31 के अधीन कोई अपराध है वो CRPC के प्रोविजन द्वारा ही गवर्न किए जाएंगे। Subsection 2 Nothing in subsection 1 shall prevent the court from laying down its own procedure for disposal of an application under section 12 or under subsection 2 of section 23. Subsection 1 की कोई बात section 12 के अधीन
या सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अधीन किसी एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए अपनी जो उसकी खुद की प्रोसीजर है उसे करने से कोर्ट को निवारित नहीं करेगी। लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का सेक्शन 29 अपील। अब बताइए अपील कहाँ होगी इस एक्ट के अंतर्गत। There shall lie an appeal to the Court of Session within 30 days from the date on which the order made by the magistrate is served on the aggrieved person or the respondent as the case may be, whichever is later। इस एक्ट के अंतर्गत जो अपील होगी वो सेशन कोर्ट में होगी विदिन 30 डेज, उस डेट से जब मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर सर्व किया है एग्रीव्ड पर्सन को या रिस्पोंडेंट को, जो कोई भी ऑर्डर बाद में दिया गया हो, उस डेट से विदिन 30 डेज। आई होप चैप्टर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंडियन जुडिशरी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ। बाय।